अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. In this chapter, we will learn about solution, type of solution, saturated, unsaturated, and supersaturated solutions, factor affecting solubility, crystallization, strength of a solution, suspension, and the example of suspension in daily life. One by one, we will discuss all these topics. First definition, that is solute. What is the definition of solute? The component of a solution which is present in smaller amount is called solute. The component of a solution which is present in smaller amount is called solute. For example, if we take the beaker which is full of water and when we add 1 tablespoon of sugar, the sugar will be solute. Sugar will be act as a solute because the sugar which is present in smaller amount, जो भी हमारे पास solution में smaller amount में होगा is called solute. या you can say the substance which is dissolved in a solvent, जो कि solvent में dissolve हो रहा है, it's called the solute. The component of a solution which is present in smaller amount is called solute. There are so many example. For example, अगर आपने एक ग्लास वाटर लिया और आपने उसमें जो है वो फॉर एग्जांपल एक टेबल स्पून जो है वो टैंक का ऐड कर दिया, तो वो जो टैंक जो सॉलिड फॉर्म में होगा इट विल बी योर सॉल्यूट. सेकेंड डेफिनेशन है सॉल्वेंट. The component of a solution present in greater amount is called solvent. The component of a solution which is present in greater amount is called solvent. For example, if we take the beaker which is full of water and add 1 tablespoon of salt, the salt will be act as a solute. Salt जो है वो solute होगा and water will be act as a solvent. Water जो होगा वो solvent होगा because solvent जो वाटर है विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, जो वाटर है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है, सो इट्स कॉल्ड दी सॉल्वेंट. देयर आर सो मेनी सॉल्वेंट. अगर आप यहाँ पे मिल्क लेते हैं वो भी एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. उसमें अगर एक टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे तो शुगर विल बी एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड द मिल्क विल बी एक्ट एज अ सॉल्वेंट. तो इस तरह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल. But the definition of solvent is the component of a solution which is present in greater amount is called solvent. Solution. What is the definition of solution? It is a homogeneous mixture of two or more substances called solution. First of all, what do you mean by the homogeneous? Homogeneous means it has a uniform composition throughout the substance. Throughout the substance, uniform composition hogi. It's called the homogeneous. So, what is the definition of solution? It is a homogeneous mixture of two and more substances. It's called solution. For example, is a beaker full of water which act as a solvent, and when we add a sugar which act as a solute, then water and sugar इसको दोनों को मिक्स करेंगे, देन वी गेट दी सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन. इट्स कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन. अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया जो कि ग्रेटर अमाउंट में या ग्रेटर क्वांटिटी में मौजूद है बिकॉज इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और हमने यहाँ पे शुगर ले ली या एक टेबल स्पून शुगर ले लें और एक टेबल स्पून सॉल्ट ले लें, तो जो शुगर एंड सॉल्ट होंगे वो दोनों हमारे पास सॉल्यूट होंगे. यू कैन डिफाइन सॉल्यूशन एज के द सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन वन एंड मोर सॉल्यूट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट. एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी डिजोल्व हो सकते हैं सॉल्यूशन में. ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में ही हो, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड लिक्विड में भी बन सकते हैं. इस तरह से लिक्विड में सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट तरह के सॉल्यूट की एग्जांपल्स हैं जो कि सॉल्वेंट में ऐड होकर सॉल्यूशन बनाएंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन. Aqueous solution. A solution in which water behaves as a solvent is called an aqueous solution. ऐसा solution जिसमें water add करेंगे हम as a solvent, जिसमें water behave as a solvent.
वो तमाम सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्यूशन यूज होगा, इट्स कॉल्ड एन इक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल यहाँ पे दीजिए, एक गिलास वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड की, तो हम इसको बोलेंगे एन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, बिकॉज यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। जब कभी हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, इट्स कॉल्ड एन इक्वस सॉल्यूशन। आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी सॉल्वेंट, बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, ग्रेटर क्वांटिटी, जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा, विच कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट। बट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को हम यूनिवर्सली तौर पे एज अ सॉल्वेंट मानते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इक्वल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्वल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर बिहेव्स एज अ सॉल्वेंट। जब कभी वाटर बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह, या वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड एन इक्वल सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है, टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, दिस इज एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, बिल्कुल कॉमन सी एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास। नंबर 1 इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Saturated solution are those solutions which contains maximum amount of solute in a given solvent at room temperature and no more solute can dissolve in it. It contains maximum amount of solute and no more solute can dissolve in it. इसके एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें आपने सॉल्यूट ऐड किया शुगर। आप ऐड करते रहे, शुगर डिजोल्व होती रही, ऐड करते रहे, डिजोल्व होती रही। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, यानी इट कैन नॉट डिजोल्व मोर सॉल्यूट, वो इससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकता। इट्स कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट हेयर वी नीड रूम टेम्परेचर, हम इसको कोई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास जो टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर, उसी पे हम इसको डिजोल्व करेंगे। अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट at room temperature and no more solute can dissolve in it। जितना सॉल्यूट डिजोल्व होना होगा डिजोल्व हो जाएगा, उससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। और सॉल्यूट जो है वो जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, अब इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉटम में जमा होना शुरू हो जाएगा, यानी अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो इससे ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व करे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाउ यू कैन प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्या करना है आपने, टेक सम वाटर इन अ बीकर विथ कांस्टेंट स्टरिंग, एड क्रिस्टल ऑफ शुगर टिल दे डू नॉट डिजॉल्व एंड स्टार्ट टू सेटल डाउन। आपने क्या करना है, एक ग्लास ले लें या बीकर ले लें, जो भी अवेलेबल हो, उसमें वाटर ले लेना है। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो मोस्टली हम सॉल्वेंट के तौर पे मोस्टली 99% हम वाटर ही यूज़ करते हैं। देन वी ऐड दी क्रिस्टल, यानी आपने शुगर के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं। आपने शुगर ऐड करते जाना है, उसको कॉन्स्टेंटली स्टरिंग, आराम आराम से उसको मिक्स करते जाना है, यूनिफॉर्मली उसको मिक्स करते जाना है। मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, देन मिक्स इट अगेन, एड इट, देन मिक्स इट। एक ऐसा वक्त आएगा, दिस वाटर विल नॉट एड मोर सॉल्यूट, ये तो ऐसा वक्त आएगा यहाँ पे मोर सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, एंड सॉल्यूट जो है वो बीकर या जो भी ग्लास आप यूज करें उसके बॉटम में जमा होना शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगा। इट्स कॉल्ड दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इट हैज़ डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिजोल्व मोर। सो इसके बाद अब कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर, जितना सॉल्यूट डिजोल्व होना था मैक्सिमम अमाउंट वो डिजोल्व हो चुका है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Next is the unsaturated solution. What do you mean by the unsaturated solution? A solution which contains less amount of solute then it has the capacity to dissolve। कह रहे हैं ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है बट इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिजोल्व, इसके पास कैपेसिटी है इस सॉल्यूशन के पास कि और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ मोर सॉल्यूट इज एडेड, at least some of it will dissolve। I already told you that it has the capacity to dissolve more। If we add more solute then some of at least इसमें जो है वो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर डिजोल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप दोनों ये डायग्राम्स देखें, फर्स्ट एंड सेकंड वाली, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन
कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें इनमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, सॉल्यूट जो होता है कम होता है। नो अनडिजॉल्व सॉल्यूट प्रेजेंट, यानी अनडिजॉल्व सॉल्यूट जो है वो बॉटम में प्रेजेंट नहीं होगा। कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट, it has the capacity to dissolve more, an example of unsaturated solution. Next is how you can prepare unsaturated solution. What we will do, take a few crystal of sugar and dissolve them in a glass of water. आपने few crystals ले लिए sugar के, उसको glass of water में dissolve किया. This result is an unsaturated solution because the solution has the capacity to dissolve more crystals. This is an example of unsaturated solution because the solution has the capacity to dissolve more. Solution के पास capacity है कि अगर उसमें और crystal of sugar add करेंगे given temperature में, it can dissolve more crystals of sugar. So this is an example of you can prepare unsaturated solution like this. इस तरीके से we can prepare the unsaturated solution. Here is a comparison between the saturated and unsaturated solution. क्या difference है जो दो हमने, we have discussed two type of solution. The first one is the saturated and second one is the unsaturated. What is the difference between? First of all, the unsaturated solution has less than the maximum amount of dissolved solute, but it could dissolve more. अनसेचुरेटेड जो के पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो डिजॉल्व होगा वो बहुत कम डिजॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, बट इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिजॉल्व मोर। इसके पास कैपेसिटी है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन के पास कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। इसके मुकाबले में इफ यू सी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट मौजूद होगा एंड इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता, यानी बॉटम में सॉल्यूट जो है वो ऐड होना शुरू, जमा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके इट हैज़ no more capacity to dissolve more solute. This is the comparison between the saturated and unsaturated solution. This diagram represent the unsaturated solution. More solute can dissolve. अगर हम unsaturated solution की बात करें तो इसमें more solute can dissolve. You can say it has the capacity to dissolve more. Third definition is the supersaturated solution. What is the definition of supersaturated solution? A solution which contain greater amount of dissolved solute than that present in a saturated solution at the given temperature is called supersaturated solution. ऐसे solution that contain greater amount of dissolved solute than that is present in the saturated solution. Saturated solution से ज़्यादा amount of solute dissolve होगा, ऐसे तमाम solution को कहा जाएगा super saturated solution. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद सोडियम एसिटेट एग्जांपल्स दी गई हैं और क्रिस्टलाइज्ड सोडियम एसिटेट. what is the definition of super saturated solution? Are those type of solution which contain greater amount of dissolved solute than that present in a saturated solution at a given temperature is called the super saturated solution. So यहाँ तक we have discussed the solute with example, solvent with example, solution with example. We have discussed the type of solution, that is the saturated, unsaturated and super saturated solution. What will be your homework? आपका homework यहाँ पे ये है कि आपने कोई भी दो saturated and अनसेचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में लिखना है विद एग्जांपल. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं कि आपने एक ग्लास मिल्क लिया और जो है आपने उसमें शुगर ऐड की, इस तरह से आपको उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बनाना है, किस तरह से बनेगा बताना है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी किस तरह से उसका बनेगा. बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं आप. तो दो को एग्जांपल आप बताएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और दो के बताएंगे एग्जांपल अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. यहाँ तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी है यू कैन आस्क. इसको कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा सुनिए, होपफुली आप लोगों को इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. ट्राई कीजिएगा जो डेली रूटीन में एग्जाम्पल है वहाँ से कोई दो आप लेकर आएंगे एग्जाम्पल सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कोई भी दो एग्जाम्पल बताएंगे और दो एग्जाम्पल आप बताएंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. या आप सोच के रखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स इसकी
हो सकती हैं, यानी आप इसको अपने जो है वो जहन में सोच लीजिएगा कि मिसने पूछा था कि 2 सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन मतलब होनी चाहिए आपके जहन में और 2 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।